Hello student, in your English class, today I bring another topic of grammar, that is sentences. Okay, don't waste our time, I start the topic. A sentence is a group of words that makes complete sense. Words means sentence में आपको बहुत सारे words मिलेंगे, but they gives us a complete sense. So let's read the example. Karima is a beautiful girl. करीमा एक ब्यूटीफुल गर्ल है, ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है. इट मीन्स इट इज अ सेंटेंस. सेकेंड पार्ट, अ गर्ल इज करीमा ब्यूटीफुल. देयर इज ऑल्सो so many words, but these words don't give us a meaningful sense. That's why it is not a sentence. Next, early in the morning. Early in the morning, it gives a sense. सुबह जल्दी, मॉर्निंग में जल्दी, but not a complete sense. That's why it is also not a sentence. Next, I get up early in the morning. We use the same phrase here, but now it gives us a complete sense. मैं जल्दी उठता हूँ सुबह. Fifth sentence, where does she live? Where does she live? कहाँ रहती है? It's a question sentence. Now the sixth is in the capital of India. Again, as the example of third, it has a meaning but not a complete sense. इसका meaning है but complete sense नहीं है. That's why it is not a sentence. Okay student, जो basic sentences से related जो exercise होती है, first आपके यही होती है कि आपको identify करना है कि जो given group of words हैं that makes a sentence or not. तो वहाँ तो यही एक्सरसाइज हमने की है जिससे आपको पता चलेगा आंसर है या नहीं है. नेक्स्ट, सेंटेंसेस की कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, हम उन्हें रीड कर लेते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, एंड्स विद अ मार्क. एक मार्क से एंड होगा, वेदर इट इज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन साइन मार्क. And the most important thing is has a complete sense. उसके complete sense भी होगी. So let's do the type of sentences. There are 5 type of sentences. First is statement sentence, interrogative sentences, imperative sentences. Fourth is exclamatory, and the fifth is objective. Let's do first sentence. First type of sentence. The jumble word exercise, we will done it in the end of our video. So the first sentence, statement sentences. और ये जो sentences हैं इनको further बहुत सारे names से भी जानते हैं, just like declarative sentences, assertive sentences. तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. Sometimes it is introduced by assertive sentences, declarative sentences. Okay, तो इनकी जो डेफिनेशन होगी एक तरह से वो होगी, इट सेज कुछ कहेगा, स्टेट और डिक्लेयर, असर्ट करेगा, किसी बात को क्लियरली बताएगा हमें. नेक्स्ट, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन आप बच्चे जनरली लेते हैं, एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ये जनरली किसी के बारे में कुछ हमें बताएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. Just like example, good children obey their parents. Yes, it's right. जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं. तो जनरली हमने एक बात कही, and our sentences ends with full stop, starts with a capital letter. Next, this sentence has further 2 parts, affirmative sentences and negative sentences. Affirmative, that gives us positive sense, and the negative one is that gives us negative sense. Let's do some example of it. They are watching TV. वो TV watch कर रहे हैं. एक simple sentence है. ये तो clear हुआ कि ये statement sentence है, declarative sentence है, assertive sentence है. But इसमें इसकी type हो गई affirmative. Means ये में positive sense दे रहा है. Next one is I do not want to go, or I don't want to go. इसमें सेंस हो गई नेगेटिव.
तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ. ओके लिसन स्टूडेंट, टू गिव अ नेगेटिव सेंस देयर it's not necessary to only mention to not. सिर्फ not से नेगेटिव नहीं बनता है. We have so many words that shows the negative sense, just like no, never. Next part is interrogative sentences. Okay, first of all I read its spelling. INTERROGATIVE. बहुत सारे बच्चे इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, तो इसे आप अच्छे से लर्न कर लेना. सेम एज स्टेटमेंट सेंटेंसेस के बहुत सारे नेम थे, तो इंटेरोगेटिव का भी एक नेम है. सेकेंड नेम ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज क्वेश्चन सेंटेंसेस. क्वेश्चन सेंटेंसेस थोड़ा इजी लगता है स्टूडेंट्स को लर्न करना, बिकॉज इट्स क्लियर इट्स मीनिंग. उसका मीनिंग को क्लियर भी कर देता है कि क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन पुट करेंगे. इट्स, तो इसकी पॉइंट्स रीड करते हैं. इट आस्क a question, एक क्वेश्चन आस्क करेगा. द सेकंड पॉइंट इज इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क का साइन हमने साइड में राइट किया है, तो एक क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. जस्ट लाइक एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम? डू यू नो हिज फादर? क्या तुम उसके फादर को जानते हो? ओके, इफ यू नोटिस, आपने कुछ नोटिस किया होगा कि हमारे पास टू टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस है. द फर्स्ट वन इज स्टार्ट विद WH फैमिली एंड द नेक्स्ट वन स्टार्ट इज हेल्पिंग वर्ब. तो फर्दर हम इसकी टू टाइप्स भी करेंगे. फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड. जस्ट लाइक जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमारे वो सारे आ जाएंगे. हु, वेयर, व्हाई, व्हेन, होम, व्हाट एंड हाउ ऑल्सो. ये WH से स्टार्ट नहीं, WH की फैमिली में ही आता है, बिकॉज इसे हम यूज करते हैं क्वेश्चन पुट करने के लिए. सेकंड है स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब की मैंने एक कैटेगरी बनाई है. जस्ट लाइक बी वर्ब हुई हमारी, इज, एम, वाज वर्ब, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, एंड जितने भी हमारे मोडाल्स हैं वो सारे. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. आप सब भी ठीक हो गए. नेक्स्ट, वर दे प्लेइंग इन द ग्राउंड? क्या वो ग्राउंड में खेल रहे हैं? यहाँ हमने फिर से टू एग्जाम्पल लिए. द फर्स्ट वन इज स्टार्ट फ्रॉम WH फैमिली एंड द नेक्स्ट वन इज स्टार्ट फ्रॉम यस हेल्पिंग वर्ब. तो क्वेश्चन वर्ड्स को मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है कि विच क्वेश्चन वर्ड हमें किस चीज का आंसर देगा. तो इनके मीनिंग अगर आप लर्न कर लोगे तो जस्ट टाइप आपके जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उसमें भी क्वेश्चंस पुट करते हैं, तो बच्चों को करीब बात आइडेंटिफाई कि आपको क्वेश्चन प्लेस से रिलेटेड मिला है या रीजन बताना है या टाइम शो करना है. तो अगर इनकी मीनिंग आपको क्लियर होंगी, आपको वहाँ आंसर्स देने में बहुत ईजी होगा. जस्ट लाइक हु गिव्स द आंसर ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से रिलेटेड, अब वो सब्जेक्ट आपका एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. वेयर हम यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं प्लेस से रिलेटेड. वाई शो करता है रीजन से, व्हेन शो करता है टाइम को, होम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड. जस्ट लाइक होम डिड यू गिव द पेन? किसको दिया तुमने पेन? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट. आई होप आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में भी किया था. व्हाट, एक्शन से रिलेटेड. जस्ट लाइक व्हाट आर यू डूइंग नाउ? यस, यू आर वाचिंग, यू आर लिसनिंग द वीडियो. एंड हाउ की जो सेंसेस है वो थ्री टाइप से होती है. मैनर, आपने वो काम कैसे किया. हाउ डिड यू सोल्व द क्वेश्चन. नंबर को शो करेगा. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास. एंड द नेक्स्ट इज क्वांटिटी शो करेगा. हाउ मच वाटर इज लेफ्ट. ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ क्वेश्चन सेंटेंस. एक क्वेश्चन सेंटेंस की फॉर्मेशन. आपको लग रहा होगा कि सब कुछ आता है हमें, बट मैं आपसे आगे क्वेश्चन पुट करूंगी तब आप देखना कि फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी. तो फॉर्मेशन में क्या होता है, टू टाइप के सेंटेंसेस है तो फॉर्मेशन भी टू टाइप्स की होगी. द फर्स्ट वन इज जो स्टार्ट होगा WH फैमिली से, तो फॉर्मेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमारा WH फैमिली का वर्ड होगा. आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा, इसे मैंने एक ही लाइन में लिया है, बट आपका क्वेश्चन अगर स्टार्ट है हु से, अब हु हमने रीड किया था, हु किससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट करते हैं हम, सब्जेक्ट से.
तो इसी लाइन में, इसी रो में हमारा सब्जेक्ट ओमिट हो जाएगा। क्लियर? अगर प्लेस से रिलेटेड है तो उसी सेंटेंस में प्लेस को हम ओमिट कर देंगे। एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, हु इज योर क्लास टीचर। अब हु से था तो यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल सेम है दोनों की फॉर्मेशन, WH फैमिली की और हेल्पिंग वर्ब की, बस वहां से हमें WH फैमिली वर्ड को ओमिट करना है और बाकी की जो फॉर्मेशन हो गई आपकी वो स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब से हो गई। जस्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब हो गई स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेम रीजन यहाँ है, सेम फॉर्मेशन यही होगी। ये सेंटेंस अगर क्वेश्चन स्टार्ट है आपका सेंटेंस से रिलेटेड तो यहाँ से सेंटेंस ओमिट हो जाएगा। ओके, एक और स्पेशल थिंग है, हेल्पिंग वर्ब से जब भी हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो उनमें हमारे जो आंसर होते हैं वो यस और नो में ही होते हैं, तो इनके आंसर्स देना इज वेरी इजी टू गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन दैट स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। हैव यू डन योर वर्क, आई होप यू, तो आप आंसर दोगे यस आई हैव डन। कैन यू जंप हाई, नो आई कांट जंप हाई। क्लियर? इनके आंसर देना बहुत इजी होता है, हमें यस और नो में ही आंसर देने होते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड सेंटेंसेस, इसको भी बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना, इसके पॉइंट्स रीड करते हैं हम। गिव द सेंस ऑफ कमांड, आपको कमांड की सेंस देगा या ऑर्डर की सेंस देगा। रिक्वेस्ट की सेंस मिलेगी, एडवाइस की सेंस मिलेगी या सजेशन की सेंस मिलेगी। ends with a full stop, just like statement sentences and orative full stop से imperative sentences और also ends with full stop। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो imperative है या statement sentence है? The most important thing is our fifth point, subject is omitted। imperative sentences में subject omit होता है, हम उसे नहीं राइट करते, बट ये अंडरस्टूड है कि जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा। जस्ट लाइक लिसन केयरफुली, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं आपके लिए यू यूज करूंगी, बट यहाँ मैंने आपको एक सजेशन, एक तरह से एडवाइस दी, प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आई डोंट यूज एनी सब्जेक्ट, मैंने कोई सब्जेक्ट यूज नहीं किया, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो ओमिट होता है, हम इसमें सब्जेक्ट को राइट नहीं करते। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अगर इसे ध्यान रखोगे तो आप कभी भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में आप कभी रॉन्ग नहीं होगे। स्टार्ट, जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं स्टार्ट फ्रॉम वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट फॉर्म से। क्लियर? जस्ट लाइक ओपन द डोर, कमांड दी, ओपन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड हुआ फुल स्टॉप से, सेंस हो रही है कमांड की। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो हम ऐड कर देंगे प्लीज, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म गिव, गिव इज द फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। डोंट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अगेन एडवाइस है, तो यहाँ टेल हमने डू भी फर्स्ट फॉर्म है हमारी और टेल भी फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी, इसकी भी मैं स्पेलिंग रीड करूंगी, EXCLAMATORY, अभी से लर्न कर लेना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सक्लामेशन साइन से आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि ये सेंस कैसे देता है। फर्स्ट, शोज सर्टेन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सोरो, सरप्राइज एंड वंडर। एकदम से आपके सामने अगर कोई सीन हो जाए या कुछ भी, आप शॉक हो जाओ, सरप्राइज्ड हो जाओ, जो एकदम से आपके मुंह से जो बात निकले, दैट शोज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और इसके नेम से ही क्लियर है, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है तो एंड होगा एक्सक्लामेशन मार्क से। एग्जाम्पल्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आपने कोई बहुत सुंदर फूल देखा और एकदम से आपके मुंह से निकला कि कितना सुंदर फूल है,
क्लियर? तो ये वंडर शो कर रहा है। अच्छा, इसमें मैंने इच इज को जो है वो ब्रैकेट में लिया है बिकॉज आवर सेंटेंस इज कंप्लीट। हमारा जो सेंटेंस है वो फ्लावर तक भी कंप्लीट है, हमें उसको लेने की नीड नहीं है चीज। ओ हिज, ओ हिज नो मोर, यहाँ सोरो, दुख शो कर रहे हैं कि ओ वो अब नहीं रहा। अच्छा, इस टाइप के सेंटेंसेस में लिसन स्टूडेंट, ऊपर वाले सेंटेंसेस में एक मिस्टेक हो गई, हमने इसे एंड नहीं किया एक्सक्लेमेशन साइन से, तो वो मिस से रह गया है। बट आप मत करना ऐसी गलती। ओ, अब यहाँ हमने यूज किया इंटरजेक्शन, जो वर्ड्स होते हैं हमारे उन्हें। अच्छा, इस टाइप में जब आप इंटरजेक्शन वर्ड यूज कर लेते हो तो उसी के बाद ये एक्सक्लेमेशन साइन ऐड होगा। लास्ट में हम इसे फुल स्टॉप से ऐड करेंगे। हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेशन साइन और लास्ट में हमने एंड किया इसे फुल स्टॉप से। प्लीज स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस को आप एंड करना एक्सक्लेमेशन साइन से। ओके, इफ यू नोटिस द फर्स्ट सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस हमने किया था, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, द सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट। व्हाट इज व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हमने क्वेश्चन सेंटेंस में भी यूज किया था। तो नेक्स्ट हम जो रीड कर रहे हैं वो है क्वेश्चन सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जब आप उन्हें रीड करोगे आपको क्लियरली शो हो जाएगा कि सेंस कौन सी शो, किस सेंटेंस में कैसी सेंस आ रही है। बट फिर भी अगर आपको क्लियर ना हो तो कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, तो उन्हें हम रीड कर लेते हैं। इन क्वेश्चन सेंटेंसेस में फॉर्मेशन रीड की थी हमने क्वेश्चन सेंटेंसेस की, जो हेल्पिंग वर्ब है ऑलवेज कम्स बिफोर अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से पहले होती है क्वेश्चन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब। हाउ ब्यूटीफुल इज शी, वो कितनी ब्यूटीफुल है, शी से पहले है हमारी हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर मैं एक्सक्लेमेटिव में बनाऊंगी तो क्या होगा, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। यस, यू गॉट द पॉइंट, आपने अच्छे से पिक किया पॉइंट को। बट इन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब जो है वो एंड में यूज होगी और समटाइम हम उसे ओमिट भी कर देते हैं जब वो नेसेसरी नहीं होती। जस्ट लाइक हाउ शी, कितनी ब्यूटीफुल है, हमने इसको ओमिट भी कर दिया। बट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, इट इज को ओमिट कर देंगे तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंस कंप्लीट दे रहा है हमें। और अगर हमें इसी सेंटेंस को चेंज करना है, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन पुट किया कि ब्यूटीफुल फ्लावर क्या होता है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये डिफरेंसेस क्यों शो किए हैं कि बिकॉज सम टाइम जो एक्सरसाइज होती है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है और आपको लास्ट में मार्क्स भी नहीं गिवन होते हैं, तो आपको मार्क भी लगाना है कि वो क्वेश्चन मार्क लगेगा या एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा, और आइडेंटिफाई भी करना है। तो अगर आप सेंटेंसेस को रीड करोगे, उनकी फॉर्मेशन देखोगे, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। द लास्ट सेंटेंस इज, द लास्ट टाइप इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। ये जनरली बहुत कम आप रीड करते हो, बट आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। शोज, जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, शोज विश शो करते हैं, प्रेयर शो करते हैं। द लास्ट वर्ड इज ब्लेसिंग, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, प्रेयर ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद देना। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जनरली एक्सक्लेमेशन साइन से ही एंड होते हैं, जनरली, हर टाइम नहीं होंगे। जस्ट लाइक मे गॉड ब्लेस यू, प्रेयर कर रहे हैं हम इसमें एक्सक्लेमेशन साइन से। तो यहाँ डाउट हो जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, बट ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो करती हैं आपकी सडन फीलिंग को, सोरो को, जॉय को, सरप्राइज को। बट ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो विश, प्रेयर एंड ब्लेसिंग को शो करेंगे। विश यू अ हैप्पी बर्थडे, अब यहाँ हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेशन साइन से एंड नहीं हुआ है, तो ये आइडेंटिफिकेशन मत रखना कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड्स विद एक्सक्लेमेशन साइन। मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ हम ब्लेसिंग कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन साइन से एंड किया, और ब्लेसिंग है तो ये सेंटेंस की कौन सी टाइप हुई, ऑब्जेक्टिव टाइप हुई। आई होप स्टूडेंट आज आपने कुछ डिफरेंट चीज़ें सीखी होंगी, तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चाहे आपके पास किसी भी टाइप की एक्सरसाइज आए आप उसे इजीली
अटेम्प्ट कर लोगे।